Hello everyone, welcome to Lukman IS. Today we are going to have the Hindu analysis of 30th August 2020. So let us see which are the important articles in today's The Hindu newspaper. So for prelims purpose and for mains purpose, we have segregated them. So first of all, we'll see mains related article and take input for our examination. Then we'll move on to prelims examination. So first आर्टिकल ऑन FAQ पेज, पेज नंबर 12. हम देखते हैं कि संडे को जो दो इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, FAQ पेज और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पेज होता है, काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स हमें यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. सो द न्यू इनिशिएटिव दैट इज स्टार्टेड बाय जापान, or let's say the idea that was floated by Japan recently is supply chain resilience initiative. So Japan wants to coordinate with India and Australia and start this initiative, supply chain resilience initiative. The article analyzes from Indian perspective whether India is going to, let's say, benefit, what are the, let's say, challenges from China in Indian region. ये सारी चीज़ें पूरे आर्टिकल में डिस्कस होती है और वो आर्टिकल के ऊपर से ऐसे क्वेश्चन तैयार हो सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई चेन रेजिलियंस, discuss the significance of supply chain resilience initiative for India. Okay, so from IR, international relations perspective, this article is very important. So let us try to take input from this article. So in this way we have, let's say, prepared the matter here. So from this we can understand the meaning of, first of all let us try to understand meaning of supply chain resilience. What does it mean? So supply chain resilience is, as the word suggests, supply chain and resilience. So we know that there is concept called as global supply chains. ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे एग्जांपल अगर देते हैं एप्पल कंपनी का, ओके, तो एप्पल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ज़्यादातर जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है उनका वो चाइना में होता है, राइट. हाउएवर द सॉफ्टवेयर और व्हाटएवर द चेंजेस इन सॉफ्टवेयर दैट आर डन बाय प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर दैट आर डन बाय USA. Okay, that company is located in USA. However, the manufacturing base is there in China, and after manufacturing they are supplied throughout the world. So this is called as global supply chains. Okay, for example APIs जो होते हैं, so APIs जो होते हैं वो pharmaceutical industries के लिए बहुत ही important होते हैं, and those APIs manufactured in China largely, and they are imported in India. And therefore, after importing, the final product is prepared in India. So pharmaceutical industries in India required those APIs from China. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल चेन का पार्ट होते हैं. ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग का जो बेस है, अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के देखते हैं तो प्रोसेस लाइन जो हम बोलते हैं कि, या फिर जो असेंबली लाइन जिसको बोलते हैं, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का हम देखते हैं कि इंडिया में काफ़ी जो है असेंबली लाइन के प्रोडक्ट्स, प्लांट्स है बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनीज के, तो उसके बाद जो है उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है. सो दैट वी कैन से दैट द पार्ट ऑफ ग्लोबल चेन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेजिलियंस? सो इन द इवेंट ऑफ नेचुरल, लेट्स से, हैजार्ड्स, कैलेमिटीज, फॉर एग्जांपल जैसे कोई सुनामी आता है, अर्थक्वेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसकी वजह से, या फिर मैनमेड फैक्टर्स जैसे कि वॉर है या फिर पैंडमिक है, डिसीज स्प्रेड है, तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या हो सकता है, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री में या दो तीन कंट्रीज में इन फैक्टर्स की वजह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है दे कैन बी, लेट्स से, शट डाउन. And for that, what will happen? Because of that, what will happen is the supply chain will break. Okay, and all countries all over the world will face the problem because of this. तो उसका अभी बेस्ट एग्जांपल जो अभी फेस किया जा रहा है वो चाइना है. सो आफ्टर, लेट्स से, पैंडेमिक स्प्रेड, COVID-19 पैंडेमिक स्प्रेड, द चाइना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन द चाइना वेयर क्लोज्ड फॉर significant amount of time. And because of that, we know that most of the country, let's say, major companies are having manufacturing base in China. And because of that, what happened is its export to many developed countries has reduced. And that's why these countries, including Japan, are facing problems. ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी वजह से जापान ने ये प्रपोज किया गया है. ठीक है, तो रेजिलियंस का मतलब ये है कि किसी एक कंट्री के यहाँ से ये मैन्युफैक्चरिंग बेस होना
या फिर ग्लोबल सप्लाई चेन का जो पार्ट होता है कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड बी डाइवर्सिफाइड, so that in the event of such natural or man-made let's say disaster, what we can say that such kind of supply chains are not broken. ठीक है, इसी को बोला गया है सप्लाई चेन रेजिलियंस. ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है. नेक्स्ट, व्हाट द जापान इज प्रपोजिंग, जापान वांट्स टू इंक्लूड इंडिया एंड Australia in this particular initiative, along with potential other let's say Asia Pacific Rim nations later on in this strategic dialogue. अभी तो ये एक conceptual हम बोल सकते हैं कि एक plan है, अभी तक उसको implement phase में है ही नहीं है. तो we can say that this is just an idea at now which is being discussed. So next is US-China trade tensions could threaten globalization as whole and have major impact on Japan. तो यहाँ पे काफी फैक्ट्स है, जैसे कि विच इज हेवीली लेट्स से रिलायंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड बोथ फ्रॉम द लेट्स से मार्केट ऑफ एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज फ्रॉम द चाइना. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जापान के ऊपर. सो दैट्स व्हाई देयर इज आइडिया दैट मैन्युफैक्चरिंग लाइंस कुड बी रीलोकेटेड आउट ऑफ चाइना टू अदर थर्ड कंट्रीज. ओके, सो इंडिया कैन बी अ फेवरेबल नेशन फॉर दैट पर्पस, हम वो देखेंगे एंड में. So what is likely to have spurred Japan to eye India as a partner for this initiative? So we can have some important facts here that Japan is the 4th largest investor in India. यहाँ पे कुछ facts दिए गए हैं. Next is import from Japan into India more than let's say doubled over 12 years to this much amount in 2019. तो ये facts important है that India makes a very important market for Japan. ठीक है, या फिर उसके मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है उसके लिए. एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट ऑल्सो. ओके, सो व्हाट डज इंडिया स्टैंड टू गेन हियर? सो वी कैन सी दैट, so following the border tensions between the India and let's say China, partners such as Japan may have sensed that India may need the third country or the other country from which it can import its requirements. However, internal push to suddenly cut, let's say, links with China would be very much impracticable or impractical. ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है? Because India is very much dependent on China. किस सेक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है? मेन हम यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि पहले तो पूरा शेयर ऑफ इंपोर्ट जो है चाइना का वो है 14.5% है, इंडिया के इंपोर्ट से चाइना से आता है. एट द सेम टाइम जैसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API जो है मेडिसिन के, वो फुल्ली डिपेंडेंट है हम चाइना के ऊपर. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री में चाइना अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स. Again, you can understand this from these two examples here. At the same time, from this pandemic, which sectors are, let's say, affected mostly? जैसे ये pharmaceutical है, automotive parts है, electronics, shipping, chemical industry, textile industry, ये सारे जो है impact हो चुके हैं. ठीक है? So that's why we can say that India will be, let's say, cautious in taking, let's say, approach towards this initiative. क्योंकि ये जो है डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए. सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से डायरेक्टली फोकसिंग ऑन थर्ड कंट्री टू हैव दोज इंपोर्ट्स, फर्स्ट इट शुड फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस, एंड सेकंड वी कैन हैव लेट्स से वर्क विद एक्सपोर्टिंग नेशंस अदर देन चाइना. ये दोनों को सही तरीके से बैलेंस किए करने के बाद इंडिया को अच्छा रहेगा. At the same time, the Japanese, let's say, we can say that India is favorable destination or attractive option for potential investors, both as a market as well as manufacturing base. दोनों के लिए important है, ठीक है? As a market as well as manufacturing base. However, some trade experts suggest that India should more focus on, again, let's say, reducing all the obstacles to have more investment and manufacturing in India by the foreign national companies. For that purpose it should, let's say, improve its ease of doing business. ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी चाहिए इंडिया ने. अगर ये हम बोल सकते हैं कि टू फैसिलिटेट मोर इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बेस इन इंडिया, ये जो रीलोकेशन की बात हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ चाइना, तो इंडिया कैन बी लेट्स से फेवर्ड नेशन फॉर दैट पर्पस. आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव. इंटरनेशनल रिलेशंस की बात हो रही है, या फिर हम जब भी बात करते हैं कि ट्रेड रिलेटेड या फिर इकोनॉमी की बात करते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी की,
ये सारी चीजें आएगी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. Yes, science and technology page. Memory T cells may only reduce COVID-19 severity. So one of the research have suggested that ये जो T cells होते हैं हमारे बॉडी में, which is the part of adaptive immune system in the body, let's say they harbor memory T cells. ठीक है. तो ये memory T cells बहुत सारे पाए गए हैं बहुत सारे patients में, and from the studies it is said that memory T cells derived from the previous exposure of common coronavirus, cold coronavirus, जो viral influenza होता है. ठीक है. तो उसका memory T cells जो बचा हुआ रहता है फाइट करने के बाद, तो वो काफी हेल्पफुल हो सकता है ये जो कोविड-19 के इन्फेक्शन होने के बाद उसकी सिवेरिटी कम होने के लिए करने के लिए. ओके, सो इट कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग द डेथ एज वेल एज सिविरिटी. But it will not help in, let's say, completely eliminating the infection chances. Okay, so we have to understand that cross-reactive memory T cells and activation would help in development of plasma cells and thus antibody production that could kill the infected cells. However, we can say that it will only reduce the disease severity. मतलब ये infection होने के बाद जो है वो काम करेंगे. तो फर्स्ट स्टेज जो है इन्फेक्शन होने की, तो वो रोक नहीं पाता है टी सेल्स. ठीक है, क्योंकि ये एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का पार्ट है, और एडाप्टिव सिस्टम जो है वो हम बोल सकते हैं कि लेटर स्टेज में आता है इन्फेक्शन होने के बाद में. ठीक है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट, एंड देन वी कैन अंडरस्टैंड सम बेसिक्स हियर. व्हाट आर टी सेल्स? सो टी सेल्स आर lymphocytes. So from here we can understand that T cells are T lymphocytes. They are produced in bone marrow. First thing we have to understand basics, that most of the T cells and B cells जो भी हमारे जो blood cells होते हैं ज़्यादातर कहाँ पे तैयार होते हैं? Bone marrow में. However, what is the difference between T cells and B cells? Basically T cells जो है वो produce होने के बाद they are transferred to one organ called as thymus. Here they are, let's say, developed in, or let's say matured in that particular. तो thymus जो होता है बॉडी के यहाँ पे सेंटर के पार्ट में होता है, यहाँ पर चेस्ट में. ठीक है. तो वहाँ पे वो क्या होता है? मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद वो उनका फंक्शन शुरू करते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई द नेम टी सेल्स, थाइमस से. T cells are of two types. One is helper T cells and second is cytotoxic cells. So what are the helper T cells? Helper T cells जो होते हैं वो बाकी immune system के cells को alert करते हैं कि foreign body जो है human body में enter कर चुकी है. How do they do that? By releasing cytokinin. ठीक है. तो cytokine जो होता है, हम देखते हैं कि cytokine जो recently cytokine storm और ये सब चीजें न्यूज में आ रही है. ठीक है. तो साइटोकाइन जो होता है वो एक हम बोल सकते हैं मैसेज होता है बाकी इम्यून सेल्स को कि फॉरेन बॉडी आ चुकी है और आपको इसके लिए फाइट करना है अभी. ओके. और साइटोटॉक्सिक्स जो सेल होते हैं, दे रिलीज द टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स इनटू देम और द फॉरेन बॉडीज एंड किल देम डायरेक्टली. So there are two types, and some of these helper T cells are let's say converted into memory T cells after this fight. Let's say eliminating the foreign body, they become memory T cells. Memory T cells जो होते हैं वो कैरी करते हैं ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में सेम काइंड का बॉडी जब आता है ह्यूमन बॉडी में तो उसके लिए वो जो फॉर्मूला है फाइट करने का दैट इज रिमेंबर्ड बाय दिस लेट्स से मेमोरी टी सेल्स. ऐसे ही मेमोरी बी सेल्स भी होती है. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एडॉप्टिव वी कैन से इम्यून सिस्टम. फाइन. So T cells have detection features. This is again unique feature जो सिर्फ और सिर्फ T cells में होता है. So T cells have detection feature on the surface that can attach to germs या antigens जिसको बोलते हैं, like lock that one particular key will fit. ठीक है. तो जैसे हम देखते हैं कि समझो ये T cell है तो T cell के ऊपर ऐसे एक फीचर तैयार होता है और समझो ये एंटीजन है तो एंटीजन का जो बाहर का जो स्पाइक प्रोटीन होता है समझो अभी जो कोविड-19 का है वो इसको यहाँ पे लॉक कर देता है. ठीक है. और वो लॉक करने के बाद टी सेल जो है
it gives the message, or let's say starts multiplying more number, formation of more number of T cells. ठीक है, तो बहुत सारे T cells तैयार हो जाएंगे, and then they start let's say immune response. जब ये फॉरेन बॉडी डिटेक्ट होता है, तो ये डिटेक्ट करने का काम जो है वो टी सेल्स या मेमोरी टी सेल्स करती है बाद में. Are you getting this? So this is very important mechanism of T cells. तो इस पे आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड ये बेसिक्स के ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है. For practice prelims MCQ, you can solve this question here. So you can be asked like it is part of adaptive immune system. Yes, it is part of adaptive immune system. Second kind of immune system is innate immune system. ठीक है, तो दो टाइप के इम्यून सिस्टम होते हैं. innate इम्यून सिस्टम होता है और दूसरा होता है एडॉप्टिव. तो इनेट जो होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, इमीडिएटली क्विक होता है. जब भी हमें कोई इंजरी होती है, कुछ होता है, तो ये इनेट जो होता है इनेट इमीडिएटली काम करता है. एडॉप्टिव जो होता है वो एक वीक के बाद जो है उसके ऊपर काम करता है, एंटीबॉडीज के ऊपर. ठीक है, रिस्पॉन्स जो होता है उसका. तो यस, टी सेल्स आर पार्ट ऑफ एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम. दे आर प्रोड्यूस्ड एंड मैच्योर्ड इन बोन मैरो. नो, they are not matured in bone marrow, rather they are matured in thymus. So this is, we can say that wrong statement. Then T cells have detection features. Yes, तो वो है, हमें पता है. So that's why answer is 1 and 3. Yes, so moving on to next article. Environmentalist petition PM on Char Dham project. So recently in last year in 2019, there was a Char Dham highway project which is let's say extending to all let's say Chota Char Dham in Uttarakhand. Okay, तो चार धाम और छोटा चार धाम में कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे लिखा है चार धाम प्रोजेक्ट, बट वो छोटा चार धाम जो है वो उत्तराखंड में स्पेसिफिकली है. तो उसके बारे में देखते हैं हम कि क्या है. चार धाम जो है, 4 abodes as the name suggests, a set of 4 pilgrim sites in India, and Hindus believe that visiting these sites before death achieves moksha, salvation. तो ये हमें पता है. So what are these 4 sites? Badrinath, Dwarka, Puri and Rameshwaram. Okay, and other 4 let's say small circuit consist of Uttarakhand, that is called as Chota Char Dham. तो वो कौन से है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ. अब दोनों में कॉमन कौन सा है? बद्रीनाथ. ठीक है, जो मेजर चार धाम भी है और छोटा चार धाम भी है, बद्रीनाथ जो लोकेशन है. बाकी के 3 जो है छोटा चार धाम के, वो उत्तराखंड के ही है. नाउ द मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा जो होता है या अमरनाथ जो श्राइन है, दिस इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ऑल दिस चार धाम्स. अमरनाथ जो है शिवा के लिए हम बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि ये जम्मू एंड कश्मीर में है लोकेशन. ठीक है, उत्तराखंड में नहीं है. फाइन. सो उसके रिगार्डिंग आपको मैप भी देखना चाहिए. मैप का लोकेशन हम देख सकते हैं इससे यहाँ पर. सो फॉर चार धाम वी कैन सी हियर, फर्स्ट बद्रीनाथ, सेकंड वी कैन से द जगन्नाथपुरी टेम्पल, थर्ड द्वारका टेम्पल इन गुजरात, एंड देन रामेश्वरम इन तमिलनाडु, फोर्थ वन. दीज आर चार धाम्स. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल तैयार होता है यहाँ पर ऐसे. ठीक है, पूरे इंडिया में. एट द सेम टाइम छोटा चार धाम आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यमुनोत्री है, ये गंगोत्री है, बद्रीनाथ और केदारनाथ. ये एक्चुअली हाईवे प्रोजेक्ट है जो 2019 में प्रपोज किया गया था, तो उसका लोकेशन हम देख सकते हैं. फाइन. तो मैप के रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि चार धाम कहाँ पर है. कल्चर का पार्ट है या फिर ऐसे मिसलिनियस पार्ट में आपको यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लोकेशंस कौन से हैं. Fine. So these questions can be solved by you. Which one among the following is not part of Char Dham pilgrimage? So very simple. केदारनाथ जो है वो छोटा चार धाम का है, सिर्फ चार धाम का नहीं है. So we can understand from that. And second question can be like which of the following is not part of छोटा चार धाम? तो अभी देखा हमने अमरनाथ is not part of चार धाम और छोटा चार धाम. It is separate shrine. ठीक है, तो ये D आंसर हो सकता है इसका फिर. Fine. Moving on to next article, India pulls out of Caucasus due to China. तो अभी रीजन जो बोला है चाइना का पार्टिसिपेशन है वहां पर. तो
Yes, so India has withdrawn its participation. Actually, 1-2 महीने पहले इंडिया ने वो एक्सेप्ट किया था प्रपोजल रशिया में जो होने वाला है कॉकास या फिर कॉकाशियस, उसका दूसरा नाम भी है 2020। ये जो रशिया में जो एक्सरसाइज होने वाली है, ठीक है, तो वो एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन बहुत सारे कंट्रीज करते हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड अदर एससीओ मेंबर्स, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीजंस क्या क्या दिए हैं, लाइक पैंडमिक जो है, बिकॉज ऑफ पैंडमिक एंड कंसिक्वेंट डिफिकल्टीज इन लेट्स से एक्सरसाइज, जो सारे लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स एंड ऑल वो दिया है। अदर रीजंस हमने दिया है कि इंक्लूड पार्टिसिपेशन ऑफ लेट्स से चाइनीज ट्रूप्स एंड ऑल। Fine. So we are let's say not much concerned about this part. Rather we should be concerned about let's say ये कहाँ पर होने वाला था, Astrakhan city in southern Russia. Okay. It is located on let's say bank of Volga river which drains into Caspian Sea. तो ये चीजें हमें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि Caucasus 2020 was supposed to happen in the Astrakhan city of southern Russia. It is located on Volga river, bank of Volga river. Volga river flows into or drains into Caspian Sea. So this is very much important for us. India ने वो जो है इस बार participate करने से मना किया है. So you can see in the map. So this is the location of Astrakhan. This is Volga river draining into Caspian Sea. Now what is important for our examination when we prelims examination, when we talk about Caspian Sea or any other landlocked sea, जैसे कि Mediterranean Sea है, Black Sea है, Caspian Sea है, तो उसको बॉर्डर करने वाली जो कंट्रीज होती है उसके बारे में हमेशा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। तो कैस्पियन सी के बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो जैसे 5 कंट्रीज है, फर्स्ट रशिया, सेकंड इज अजरबैजान, थर्ड ईरान, एंड फोर्थ वी कैन से दैट Turkmenistan, and fifth is Kazakhstan. So these are the countries. उज्बेकिस्तान का बॉर्डर यहाँ पे नहीं है, वो अरल सी का डिफरेंट है। ठीक है, तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड कजाकिस्तान, these 5 countries are having border with Caspian Sea. ये आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। So we can have such kind of question on the basis of above information in prelims examination. ये आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉकास 2020 रशिया में अस्त्राखान में होने वाला है। यस, अस्त्राखान सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ वोल्गा रिवर। यस, एट द सेम टाइम वोल्गा रिवर ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपका जो मैप रीडिंग वाला जो पार्ट है वो अच्छे से नहीं होगा तो। सो द आंसर इज कैस्पियन सी, वी कैन सी दैट, एंड दैट्स व्हाई द आंसर 1 and 2, और सॉरी the question is talking about incorrect, so that's why not 1 and 2, we can say that 3 only, the incorrect statement. ठीक है, तो ये सेम मिस्टेक आप एग्जाम में कर सकते हैं कि ये कमांड हमने देखनी चाहिए, सोचना चाहिए प्रॉपर कि क्या कमांड है क्वेश्चन में, और उसके बाद ही हमने आंसर मार्क करना चाहिए। फाइन, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल। Butterflies are migrating early in the southern India this year. Now what are the key points in this article? Here the article is saying that in the departure from the past, the annual migration of butterflies, migration of जो butterflies है पेनिनसुलर रीजन में, तो वो माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट कैसे करते हैं? कोस्टल प्लेन रीजन से वो हिली एरियाज में जाते हैं, हिली एरियाज से कोस्टल प्लेन्स में यार। तो वो कब करते हैं? तो वो करते हैं, बटरफ्लाई माइग्रेशन इन साउथ इंडिया बिगिंस इन अक्टूबर नवंबर with the onset of northeast monsoon from plains to ghats, western ghats. तो वो plains to western ghats कब जाते हैं? जब बारिश का सीजन खत्म हो जाता है बेसिकली। ठीक है, और वो जब बारिश का सीजन आता है तो वो वेस्टर्न घाट से निकल के प्लेन्स रीजन में जाते हैं। सिंपल लॉजिक है। तो अभी टाइमिंग क्या चल रहा है? अगस्त चल रहा है या फिर सितंबर है। तो ऑनसेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी तक हुआ नहीं है। बिफोर दैट ओनली द बटरफ्लाइज आर माइग्रेटिंग टू वेस्टर्न घाट्स। सो ये एक ऑब्जर्वेशन रिसेंटली किया गया है दैट माइग्रेशन ऑफ बटरफ्लाइज फ्रॉम हिल रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट्स टूवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स इज अर्ली फेनोमेनॉन दिस ईयर। ठीक है, तो वो जल्दी हो रहा है। तो ये एक बेसिक आपको एक मिसलेनियस पार्ट बोलिए कि जनरल नॉलेज बताए कि इंफॉर्मेशन होनी चाहिए दैट बटरफ्लाइज इन द वेस्टर्न घाट्स रीजन और पेनिनसुलर रीजन, दे माइग्रेट फ्रॉम हिली रीजन टू प्लेन्स रीजन
इन लेट्स से मॉनसून टाइमिंग, मॉनसून मंथ्स जहाँ पे रेनफॉल होता है, और बाकी टाइम में वो क्या करते हैं, माउंटेन्स पे सी लेट्स से प्लेन रीजन से माइग्रेट करते हैं. फाइन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल. Some important data on page number 12, FAQs page, that how the pandemic is spreading to rural area and how rural areas are, let's say, unequally placed as compared to urban area when we talk about health infrastructure and personnel. तो ये इंफॉर्मेशन या हम डेटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जो आप एसे में या कोई भी आंसर में कोट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 85.9% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इज नॉट कवर्ड अंडर इंश्योरेंस इन 2080 एज कंपेयर टू 80.9% अमंग द अर्बन पॉपुलेशन. वो कवर हो चुका था हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर. 20% ऑफ द ऑल डॉक्टर्स इन इंडिया आर सर्विंग इन रूरल पार्ट्स, मतलब 80% जो है वो ज्यादातर सारे अर्बन एरियाज में है. ये देख सकते हैं आप इनइक्वालिटी कितनी है. 37% ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेड्स आर इंडिया इन आर रूरल एरियाज. तो बाकी के जो है वो अर्बन एरियाज में ही है. सो वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑलमोस्ट 65% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है इट इज स्टिल लिविंग इन रूरल एरियाज. ठीक है. और स्टिल वी आर हैविंग सच काइंड ऑफ स्क्यूड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज लेट्स से पर्सोनल as when we talk about urban and rural areas. ठीक है. तो ये इंफॉर्मेशन, बेसिक डेटा, फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए. यू कैन यूज देम इन एसे, और वी कैन टॉक अबाउट GS2 जहाँ पे कोविड-19 या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस पे मेंशन कर सकते हैं. फाइन. सो दीज वेर द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर. For further information on editorial discussion classes, when in in-depth analysis of all men's related issues and articles is done by Ansari sir and team, you can contact Lukman IAS. Thank you.